Bismillahirrahmanirrahim. So, in the series of children's psychology, today is our third session. And in last two sessions, we studied one special children's psychology theory according to the Mr. Abraham Maslow's hierarchy of needs. Right, before we go on to the third session, to start with this, can we recapitulate what actually Mr. Abraham Maslow said? Can we just, in a few words, can we recapitulate? Right, can you tell me what was that, what we studied in last two sessions? We studied that we should encourage our students positively in every short and every aspect, and we should not blame, and Right. we should not. So first, what were those levels, hierarchy of needs that Abraham Maslow gave? Can you just repeat or revise those? Yes. Psychological. First, psychological needs, right? Safety needs. Safety needs, right? Belonging and love. Love and belonging. Love and belonging needs, right? Then, Safety needs. Self-esteem. right. So those are the first 3-4 levels below that. And we studied कि जब तक वो पहले नीचे वाला लेवल उसका अटेन नहीं होता तो वो अगले वाले लेवल पर नहीं जा सकेगा और वो उतना वो कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगी, वो आपके साथ कोऑपरेटिव नहीं होगा. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट needs are required to him at that particular time. उसमें हमने ये देखा कि इन वजूहात के साथ वो किस किस्म का आपको इंडिकेटर्स देता है कि कैसे आपको पता चलता है कि इसको ये नीड्स इसको चाहिए. और फिर उसके बाद फिर हमने ये देखा कि क्या हमें एक्शन करना चाहिए, हमें इंटरवेंशंस कैसी करनी चाहिए और उसके बाद कौन सी चीजें जो नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चा मेंटली इस बात को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके. राइट. सो एज आई थिंक द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड फॉर द टीचर्स, फॉर यू ऑल. A person cannot be teacher unless he understands the psychology of his students. It is the base of communication between teacher and students for successful learning. In our two previous sessions, as I discussed, we had already talked about 4 levels of Abraham Maslow's hierarchy of needs, and now we will go to the next. But I want to just highlight again, understanding the child mentally helps the child to learn and overcome their emotional or social disorders. This is done so as to adopt the child to be useful and normal individual for the environment. Child psychology also helps the child to express the emotions in a positive manner because their interactions and social dealings has a huge impact on their future life. Okay, so now just to fresh up your mind, the same hierarchy of needs Maslow's is flashed on the screen, and we had already studied psychological needs, safety needs, belonging and love needs, and now today we are going to see the main that is self-esteem and competence needs. Self-esteem and competence needs. And what it is? कोई इसको पढ़ेगा क्या है ये? To achieve, to gain How? approval and recognition from others for our achievements, to trust in our own abilities. Right. Can somebody tell in own words? Yes, रमजान. अपने अल्फाज में बताएंगे Yes, sir. क्या है ये? To achieve, to gain approval and recognition from other for our achievement. हमारे जो goals हैं उनकी achievement के लिए हम क्या चीज़ उनसे gain करते हैं और Yes. सर किसी बच्चे ने ये सेल्फ एस्टीम है, कॉम्पिटेंस नीड्स है, एक्सेप्ट करने उसके. उसको जो है वो हाँ. किस तरह करेज करता है, उसको किस तरह हौसला देता है. क्यों मिस्टर दत्त, वुड यू लाइक टू? सो द नीड टू फील वर्दी, वो महसूस करे कि मैं कोई काबिल इंसान हूं, आई एम वर्दी टू समथिंग.
मैं ऐसे गैर जरूरी या ऐसा नहीं हूँ. जी सर. He should be able to feel worthy, important and competent कि मेरे में भी मुकाबले की सकत है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ. To feel that your abilities are appreciated. बच्चा बड़ा खुश, बच्चा क्या है, सारे खुश होते हैं जब उसको आप अप्रिशिएट करते हैं. सो इस वक्त उसकी ये नीड है कि उसकी वर्दीनेस को, उसकी कॉम्पिटेंस को, उसके एक टैलेंट को एक्सेप्ट किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए और उसको ये बावर करवाया जाए कि जो सक्सेस है, जो गोल्स हैं, जो भी तुम समझते हो वो अटेनेबल है, वो तुम अचीव कर सकते हो, ये तुम्हारे बस में है. तो ये अगर उसकी नीड अगर आप कर देते हैं तो उसकी सक्सेस, उसका फ्यूचर बहुत श्योर हो जाता है. लेकिन हमें ये देखना ये है कि अगर ये चीज़ पूरी नहीं हो रही होती तो वो बच्चा आपको कैसे बताएगा कि उसकी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही. वो कुछ इंडिकेटर्स छोड़ेगा जो आपने पिक करने हैं, वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा, ऐसी कुछ बातें करेगा, ऐसा कुछ जेस्चर्स देगा, कुछ बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसी होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ही डिजायर्स या उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको भी अप्रिशिएट किया जाए, उसको भी वर्दी समझा जाए, उसको भी किसी काबिल समझा जाए, उसको किसी तरह का निकम्मा ना समझा जाए. तो वो क्या है वो करेगा, राइट? जनरली वो क्या करता है, वो समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से ये काम नहीं होगा. जनरली उसकी ये होती है. और जब वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो छोड़ देता है, वो कहते हैं ही गिव्स अप, कहो कि मेरे से नहीं होता. ये उसके अंदर से ऐसी चीजें होंगी जो कि आपने देखना है. अगर ये बच्चा ऐसा कर रहा है तो दिस इज वेयर ही इज लैकिंग. ओके, देन स्पीक्स नेगेटिवली अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में कहने लग जाता है नेगेटिव. मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे तो ये हो जाता है, मुझसे तो ऐसे नहीं होता, मुझसे गिर जाता है, मुझसे कुछ होता है. कई दफा मैडम ये हमारे कहती होती हैं अक्सर इस किस्म की नेगेटिव नहीं अपने बारे में समझे, अपने आप को वर्दी समझे, उसको बावर करवाएं, उसको यकीन दिलाएं कि नहीं, यू आर वर्थ ऑफ इट, यू कैन डू इट, यू आर केपेबल ऑफ इट. और उसके हम देखेंगे कि किस तरीके से करना है. पहले तो हम उसको देखें कि इंडिकेटर्स वो क्या छोड़ रहा है. सो देन ही मेक्स एक्सक्यूजेस, विंस. क्या होता है एक्सक्यूजेस, विंस? हाँ, somebody will, हाँ. सर वो कहेगा मैं टेस्ट नहीं याद किया, मैं नहीं कर सकता, मैं हाँ, homework मतलब नहीं जैसे कर सकता। बैन नहीं डालते हैं, मतलब वो मुझे ऐसे नहीं पता। ट्राई करेगा, शोर डालेगा, मुझसे नहीं होता। मैं से नहीं होता, ये नहीं होता, नहीं छोड़ पढ़ डालेगा. सकता। आप हमें एक्स्ट्रा पढ़ाती हैं, हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, हाँ। हमने बस वही 30 मिनट पढ़ने हैं और हमने पढ़ने ही नहीं है. ये भी हो सकता है. मतलब वो कंप्लेन्स करेगा मुझसे. हाँ जी. वो ऐसे अपने वो है क्या मैं सारी रात उनको पढ़ता हूँ, टाइम मुझे दो याद तो नहीं वो होता. पढ़ते ही नहीं, काम क्यों ज्यादा हमें है. ज्यादा पढ़ा रही हैं, हाँ। हमें ज्यादा टाइम ना दें. हाँ, कोई और बहाना बनाने लग जाएगा. मतलब वो कोई ना कोई ऐसी चीजें, ऐसे रिएक्शन दिखाएगा फ्रस्ट्रेशन के, जिससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि व्हाट ही वांट्स. वो हम आगे अभी जाके देखेंगे कैसे हमने उसको राह रास्त पे लाना है या उसको हमने ठीक है. बावर करवाना है ताकि वो हमारे साथ चले. देन ही, अभी इसमें वो अपना एक एटीट्यूड शो करता है, मुझे नहीं परवाह, जी सर. आई डोंट केयर, जो मर्जी. मुझे नहीं वो परवाह. कहता है कर ले जो करना है, हरून जैसे कहता है कर ले जो करना है, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा. हाँ, सो वो अपने आप को मतलब ऐसा शो करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना? तो आप अभी उसको गौर करें, आपने उसको उस रास्ते पे लेके आने कि उसको महसूस होने लग जाए. फर्क पड़ेगा. ठीक है ना? तो वो हम आगे उसके डिटेल में बढ़ेंगे. देन ही पुट्स डाउन अदर स्टूडेंट्स हु आर सक्सेसफुल, जो कोई अच्छा काम कर लेते हैं ना, किसी ने बहुत अच्छी लिखाई कर लिया तो उसके ऊपर क्या है. और अगर किसी ने बहुत अच्छा रिजल्ट ले लिया, या रीडिंग कर लिया, या राइटिंग कर लिया, ऐसे कर लिया, कोई सम्स कर लिए, न्यूमेरिकल कर लिए, कोई फिजिक्स का कर, तो वो उसको वो वैल्यू नहीं देगा. वो उसको नीचे करके दिखाने की कोशिश, इतनी ये क्या बात है, इतनी कौन सी बात है ना, ऐसे तो उसको वैल्यू नहीं देगा, उसको नीचे दिखाने की कोशिश किया. ही पुश डाउन दैट. ही खुद जो है ना कभी कभार काम करके आएगा, रेयरली वर्क्स, क्योंकि उसके ज़हन में ये है कि मैं नहीं कर सकता. उसके ज़हन की परेशानी ये है कि वो अपने आप को यही समझता है कि मैं नहीं कर सकता. जनरली वो डिसऑर्गेनाइज होगा, चीजें कोई इसको इधर पड़ी होंगी, कोई इधर पड़ी होंगी, कोई बैग में कुछ उसके, कभी नोटबुक होगी कभी नहीं होगी.
कभी कंसर्न बुक होगी, कभी नहीं होगी. सो ही इज जनरली डिसऑर्गेनाइज. और फिर अगर जब सर पे फिर रहे होंगे रमजान साहब, तो वो जो है ना दूसरों से कॉपी कर लेगा कि चलो मैं गुजारा हो गया. सो इस किस्म की वो हरकतें करेगा. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट. बजाय उसको आप और ज्यादा करें, वो हम आगे चलते हैं इस पर, मैं अभी नहीं. सो और क्या इंडिकेटर्स हैं? ही डायरेक्ट्स अटेंशन अवे फ्रॉम हिमसेल्फ. वो मतलब इधर उधर करेगा कि आप ना ही उसकी तरफ तवज्जो करें. जी सर. और जब जरूरत आ जाए तो दूसरों को ब्लेम करेगा, एनवायरनमेंट को ब्लेम करेगा. जैसे आपने अभी कहा कि कह देगा रात बिजली कोई नहीं थी, लाइट बंद थी बिल्कुल. जी, वो रात उधर हम सो नहीं सके. और तवज्जो बटाने के लिए अनएक्सपेक्टेड सवाल करेगा कि वो मैम वो गंदी बातें कर रहा है, मैम वो हाँ. देखिए वो ये कर रहा है, ताकि मेरी मतलब चीजें की तवज्जो उधर लग जाए. उधर लग जाए. मैम मैंने पेशाब करने जाना है, मैम मैं बस अभी आया और हाँ. वापस ही नहीं आएगा. वापस नहीं. सो वो इस किस्म की डायरेक्ट अटेंशन away from himself, right? So then he also withdraws, shows what is withdraw, may not speak if spoken to. आपको याद होगा, हमारे भी एक बच्चा है जो अभी आजकल उधर लाहौर में है, कि उससे वो गलतियां करता है, उसे बोले, उसे कहते रहे, वो खामोश, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं आपसे जवाब देगा, खामोश रहेगा. He doesn't speak then, he doesn't talk it out. ठीक है ना? सो ऐसा भी होगा. तो वो जो विड्रॉ करता है और वो इफ ही डज नॉट स्पीक, अब अंडरस्टैंड करें कि क्या वजह है. बच्चे खराब नहीं हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं, हमारी ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, उनकी साइकोलॉजी को हम उसको समझ नहीं पाते हैं. हम उनको एक भेड़ों की तरह या कुछ जानवरों की तरह हाँकना चाहते हैं. हम खुद टीचर्स उतने कैपेबल नहीं होते, जिसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे पास अगर 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, वो 30 की 30 किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जिसको आम अल्फाज में कहते हैं डिलीट हो जाते हैं. वो आपको अच्छा आउटपुट नहीं देते हैं. तो बेसिकली उनकी नहीं कसूर होता, ये कसूर हमारा होता है. हम उनको समझ के नहीं चल रहे. सो ये इंडिकेटर जब वो छोड़ रहा है, तो उसके ऊपर आप खामोश दबाने की ना कोशिश करें, उसको समझें, राइट. सो फिर वो अक्सर लेट आएगा, अक्सर एब्सेंट होगा, किसी न किसी वजह से एब्सेंट हो जाएगा, किसी न किसी वजह से लेट हो जाएगा. सो ये सारी चीजें आपको वो इंडिकेटर देता है. अब इसके बाद भी अगर हम ना समझें टीचर के तौर पे, तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी सोचने की बात है. हमें कुछ इंटरवीन करना है, हमें कुछ एक्शन लेने हैं ऐसे मौके पे. वो इंटरवेंशंस क्या हैं, वो कौन से मेथड्स होंगे कि हम उनको ऐसे बच्चों जो इंडिकेटर दे रहा है उसको हम दुरुस्त कर सकें, उसको हम उस रास्ते पे लेके आ सकें कि वो एक अच्छा ऑर्गेनाइज पढ़ने वाला बच्चा बन जाए. अगर वो बच्चे नहीं इस तरह आते, तो इसका मतलब है आई एटलीस्ट सिंपली टेक इट इज माई फेलियर, इट इज माई टीम्स फेलियर, इट इज माई टीचर्स फेलियर. अगर हम उनको करें तो बच्चा तो आए ही इसीलिए. उसको उसकी एनर्जीज को डायरेक्ट करना, डाइवर्ट करना टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड्स इज आवर गोल, इज आवर मिशन. और अगर हम कर लेते हैं, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. I will be proud of you people. Yes, excellent. You have brought a child who was not taking keen interest in his studies or in his work or in his assignments. You have brought him to the mainstream and now he is doing wonderful. और मैं इस पे जिक्र करूँगा, महत था हमारे पास एक बच्चा, उसको बोल नहीं सकता था, बिल्कुल उसकी जो मुख्तलिफ किस्म की हैबिट्स थी, लेकिन आप ही लोगों के ने उस बच्चे को इतना अच्छे तरीके से ट्रीट किया कि बाद में वो किसी को, उनके वालिदैन को यकीन नहीं आता, बल्कि वो आके रोने लगे थे कि इतना अच्छा हो गया, इतना बेहतर हो गया. अभी वो फिर काम भी करने लगा था, चलने फिरने भी लग गया था, हर चीज में नॉर्मल हो गया था. तो दैट वाज योर अचीवमेंट एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. तो इसी तरह हमने अपने आप को चैलेंज समझना है अपने पास जो बच्चे हमारे पास हैं. सो इनकी डेवलपमेंट के लिए इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए,
ways to meet the need क्या है? राइट, कोई आप बताएंगे? यस, क्या करना चाहिए हमें? जी बताइए. Create emotionally safe and risk-free environments, learning environments, in which mistakes are okay, even invited. वो गलती करता है ना, स्नब न करें, कोई बात नहीं, गलती होगी, गलती आप में से कौन परफेक्ट है? हम में से कौन परफेक्ट है? तो उसको गलती अगर करने दे, गलती करेगा, उसी से वो सीख जाएगा. एक करेगा, अच्छा ऐसे हुआ, नो प्रॉब्लम बेटा, ओके लेट्स पुट इट राइट. उसको रिस्क फ्री एंड लर्निंग एनवायरनमेंट्स दें. ये नहीं कि अच्छा तुमने ये गलती की है तो अब तुम्हारी पनिशमेंट, अब मैं तुम्हारे घर बताऊंगी, अब मैं तुम्हारे साथ ये करूं. उसको यकीन हो, इमोशनली उसको एक्सप्लॉइट ना उस वक्त करें कि मेरे साथ पता नहीं क्या कर हो जाएगा. ये ना करें, उसको रिलैक्स रहने दें. और अगर उसने मिस्टेक कर ली, कोई बात नहीं, मिस्टेक सभी करते हैं, तो अभी उसने किया, उसको आप उसको सिखाएं. ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज लाइक दिस, ओके लेट्स डू इट. गलतियों से आदमी सीखता है. सो इसी तरीके से उसको एक रीइंफोर्स जो एफर्ट होती है और जो आउटकम होती है, उसके दरमियान में जो लिंक होता है, वो समझाने की कोशिश करें. टीच रीइंफोर्स द लिंक बिटवीन एफर्ट एंड इनकम. अब पढ़ाते हुए अगर वो अच्छा काम करने लग गया है तो उसको शाबाश मिलती है, तो ये भी एक उसकी इनपुट और आउटपुट के अंदर लिंक है. लेकिन शायद वो इसको समझने में मुश्किल हो. अब और भी तरीका हो सकता है. मसलन अगर वो बॉलिंग अच्छी करता है, फास्ट करता है, अच्छी करता है, एक्यूरेट करता है, तो क्या होता है? अगला आउट हो जाता है. सो उसको बताएं, देखिए इफ यू हैड वर्कड हार्ड तो आप उसको आउट कर देते. अगर वो बैटिंग अच्छी कर लेता है, देखो भाई तुमने इतने रन बना लेते हो, क्योंकि ही इज वर्किंग हार्ड फॉर दैट, ही इज फोकसिंग ऑन दैट, ही इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट. इसी तरह कोई गेम है, स्क्रैबल है, अगर उसने अच्छे तरीके से सीखे हुए हैं वर्ड्स बनाना, तो स्क्रैबल में बहुत अच्छे वर्ड्स बनाने लगे. सो यू कैन हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज जिसमें उसको महसूस हो कि जितना मैं करूंगा उतना मुझे बेहतर रिजल्ट नजर आएगा. सो ट्राई टू एस्टेब्लिश, उसको समझाएं, और फिर वो आपके याद करेगा तो उसको समझ भी आएगी, समझेगा और उसको उसका रिजल्ट भी नजर आएगा. इवन जो मार्क्स होते हैं, ये भी एक किस्म की उसको आउटपुट का लिंक ही देने वाली बात है. लेकिन दूसरी चीजें भी हैं. ऐसी चीजें अडॉप्ट करें जो उसके ज़हन को अपील कर जाए, और फिर वो मेहनत करने लगे. राइट, फिर उसको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके आए. देखिए हर चीज में पहलू हर तरह के होते हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी. उसको इस चीज पे बावर कराएं कि आप मसलन अगर कोई ग्लास है, वो हाफ एम्प्टी है और हाफ फुल फिल्ड है, तो उसकी फिल्ड साइड देखें कि आधा ये भरा हुआ है. आप ये भी कह सकते हैं आधा खाली. इसी तरह अगर उसको कभी किसी वजह से पनिशमेंट किसी से मिली है और या उसको डांट मिली है, तो उसे कहें सी टूवर्ड्स दिस, कि इसका फायदा किसको होगा? क्या उस टीचर को होगा, या उस शख्स को होगा, या आपके बाबा को होगा, या मामा को? नहीं, आपको होगा. आप इसको लर्न कर लेंगे, आपको इसको फायदा हो जाएगा. सो उसको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ राग़िब करें, उसे महसूस करें कि ये इसका कितना फायदा होता है. और ये मैं कहता हूं हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है. अगर हम परेशान होना चाहें तो सर्दियों में भी परेशान रहेंगे कि भाई सर्दी बहुत है, गर्मियों में रहेंगे कि गर्मी बहुत है. राइट, और मतलब हम कभी भी खुश नहीं. लेकिन अगर उसी की पॉजिटिव साइड देखें कि हाँ भाई इसमें ये चीजें हैं, ये फ्रूट आ जाता है, ये चीजें आती हैं, मजा आता है, उसी को अपने. अब इस गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन साथ क्या होता है? मैंगो भी तो होते हैं, ना. सर्दियों में इतनी सर्दी होती है, ऑरेंजेस भी तो होते हैं, किनू वगैरह. सो इसी तरह आपके बाकी चीजें भी पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ ही होता है. उसका पॉजिटिव पहलू देखना सीखें और सिखाएं.
सीखें और सिखाएं। कोई जाएगा सीढ़ियों पे, ऊपर क्लास है, यार बड़ा मुश्किल होता है, थक जाती हूँ मैं ऊपर जाने में। कोई होगा वो कहेगा बड़ा अच्छा रहता है, मैं अपने आप को स्मार्ट रखती हूँ, इसी से मैं फिट रहती हूँ। सोच की बात है। सो अपने आप को हर चीज में पॉजिटिव सोच की तरफ लेके और ये अपने बच्चों में डालें। जब बच्चों में ये पड़ गई, ये आदत आ गई, उन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया, अब देखिए कैसे वो खुद बहुत ठीक करने लगेंगे काम। अब नमाज के लिए जानेंगे, वुजू करना पड़ जाए, बड़ी सर्दी गई हो, लेकिन आप 5 टाइम अपने आप को सफाई करते हैं, उसकी पॉजिटिव चीज सिखाएं। ये मसा जो करना होता है, ये गर्दन के पीछे ये पानी का लगाते हैं, ये इसके बारे में कहा जाता है, ये साइकोलॉजिकली आपको, आपके जिस्म को बहुत ज्यादा फ्रेश करती है। और कुछ लोग यानी डॉक्टर वो करते हैं, इसको स्पेशल करवाते हैं। तो आप अगर इसको पॉजिटिवली देखें तो आप खुश होंगे, नेगेटिवली देखें कि बड़ी सर्दी लगती है, यार ये क्या, ये ऐसी है। इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोग इसको कहते हैं कि यार, अब मैं दुनियावी अल्फाज में, स्पिरिचुअली जब आप फोकस करते हैं एक बात पे, अल्लाह ताला के साथ करना है, तो ये बेसिकली आपके तमाम जिस्म को रिलैक्स कर देती है। लेकिन अगर हम उसकी नमाज उसी तरह पढ़ें जैसे अक्सर करते हैं, उसका क्या होता है कि वो ना वो उसको सुकून मिलता है और ना कुछ और फायदा और होता है। सो अगर हम सही तरीके से नमाज पढ़ें तो आपका स्पिरिचुअली आप रिलैक्स करते हैं, मेंटली आप रिलैक्स कर जाते हैं, और जिसको आम दुनिया में योगा कहते हैं, ये उसी तरह आपका ज़हन रिलैक्स हो जाता है। सो हर चीज में पॉजिटिव्स हैं और हर चीज में नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव देखना सीखें, उसमें देखें सिल्वर लाइनिंग कहां पे है, पॉजिटिव साइड कौन सी है। ओके, सो और क्या करना चाहेंगे? Match learning tasks with the students' learning styles and strengths. ओके, सो अभी हर बच्चे का सीखने का स्टाइल या काम करने का स्टाइल जरा डिफरेंट होगा। आप बीइंग दी टीचर अंडरस्टैंड करें कि मेरे ये बच्चे का स्टाइल क्या है, इस बच्चे का स्टाइल क्या है। जिस तरीके से वो ज्यादा आसानी से सीखता है, उसको उस तरीके से सिखाएं, उस तरीके से उसको, हाँ, ये आपके ऊपर होगा। आपने कैसे देख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं। कुछ होंगे बच्चे जो बड़े प्यार के साथ उनको कहें तो वो शाबाश शाबाश में इमीडिएटली सीखने लग जाते हैं। कुछ होंगे बच्चे जिनको आप प्रैक्टिकली करके दिखाएं, उसमें सीखते हैं। कुछ होंगे जिनको एक दफा बता दें तब भी सीख जाते हैं। कुछ एक्टिविटी के साथ सीखते हैं। अब मसलन सर्कमफ्रेंस निकालना है एक दायरे का, तो अगर असद साहब उसको ड्रोन के ऊपर दायरा लगा के उसको क्या है, ओके लेट्स वर्क इट आउट एक्टिविटी वाइज, तो वो उसके शायद सारी उम्र ना भूले। सो आपने जो भी सीखे ना, आप कार्ड मेथड कर सकते हैं, उनके स्पेलिंग्स के लिए कर सकती हैं, उनके नई वोकैबुलरी के लिए कर सकते हैं, कि इस किस्म की जो चीजें आप कर सकती हैं वो आप और कर सकते हैं, वो करें, एंड दैट विल गिव यू प्राइड। सो उस बच्चे के स्टाइल के मुताबिक अपने आप को ढाल के, उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक अपना मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्ट करें, राइट? ओके, देन प्रेजेंट हिम द टास्क, जो उसको काम देने लगे हैं, जो चैलेंजिंग भी हो और जो वर्थ डूइंग भी हो। मतलब उसको जो थोड़ा सा उसमें चैलेंज करें। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी, वैसे में एक बच्चा है वो 3 फीट की को फांग सकता है, तो उसको आप बेशक 3 फुट के दे दें। जैसे जैसे वो आगे जाता है, जैसे 3.25 3.5 फीट, फिर ऐसे इसी तरह लिखने में अगर एक बच्चा एक पेज लिख सकता है एक टाइम में, से में भी 2 मिनट्स में, 3 मिनट्स में, या याद करने में स्पेलिंग कर सकता है, तो उसको थोड़ी सी चैलेंजिंग भी हो, लेकिन इतना भी ना हो ज्यादा मुश्किल कि वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाए, उससे भाग जाए, राइट? सो उसके मुताबिक उसको वो प्रेजेंट करे, जो कि कुछ उसको फील भी हो कि हाँ ये मैंने कर लिया। ही हिमसेल्फ शुड फील हैप्पी ऑन दैट, राइट? सो और क्या हो सकता है? जो उसने पहले लर्न किया हुआ है, सीखा हुआ है, उसके साथ आज की लर्निंग को कनेक्ट करके देखो कि देखो ये हमने किया था ना, ये इसी तरीके से हमने ये करना है।
ये किया था हमने, देखो इसका उसमें सिर्फ इतना सा फर्क है, जो उसने पहले से स्किल्स लर्न की हुई हैं उसके साथ उसको कनेक्ट करें, वो बच्चे को समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी, राइट? अच्छा, फिर देखिए बच्चे हर एक में कमजोरियां होती हैं। अब एक बच्चे में फर्ज की आप समझते हैं 6 कमजोरियां, 4 हैं, 3 हैं, डोंट स्टार्ट ऑल द वंस एट सेम टाइम कि उसको फ्रस्ट्रेट कर दें। समझा की बात? उसको एक टाइम पे एक डेफिसिट लें, एक कमजोरी के ऊपर बात करें, वो इंप्रूव करें, फिर दूसरी की तरफ जाएं, फिर तीसरी की तरफ जाएं। कठी आप अगर 10 बोल देंगे तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? सो अपने एक टाइम पे एक डेफिसिट को, एक कमजोरी को लें और उसको इंप्रूव कराने की कोशिश करें, उसी तरह के उसको टास्क दें, राइट? ओके, व्हाट एल्स? जी हाँ, एनी आइडिया? Teach student how to set short term daily goal. सो डेली गोल, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिमिटेड टाइम वाले, क्या आज मैंने ये करना है, वो उसको बताएं भी, समझाएं भी, और जब वो अचीव करे क्लैपिंग भी करवाएं और खुशी भी मनाएं, ताकि सेलिब्रेट भी उसको करें। छोटे छोटे गोल्स उसको बताएं, करवाएं, वो जब अचीव कर ले उसको सेलिब्रेट कराएं, और उसको भी वो कि हाँ ये मैं कर देता हूँ, और अपने लिए भी ये बनाएं कि मैंने अच्छा ये आज इस बच्चे को मैंने ये चीज़ करवा लेनी, आज मैंने इसको ये काम करवा लेना, और खुश हुए उसके ऊपर। मेरे साथ भी शेयर आके करें कि सर देखिए आज हमने ये काम करवाना सोचा था और ये हमने करवा लिया। अपने लैब में उनको वर्नियर कैलिबर का उनको सिखाना था, हमने देखा सारे बच्चों को माशाल्लाह पता चल आ गया। हमने सोचा था कि हमने इनको 10-10 हदीस करानी है, सर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इतने बच्चों को 5-5 हो गई हैं, इतनों को 3-3 हो गई हैं। अब मेरा इरादा है कि अगले हफ्ते में मैं ये करवा लूँगी। ये कर सबका हो सकता है, मैडम का उर्दू के बैग का हो सकता है, इंग्लिश का भी इसी तरीके से। सो शॉर्ट टर्म डेली गोल्स सेट करें, उस पर खुद भी प्राइड फील करें और बच्चे को भी कराएं। और कार्ड मेथड, पैराफ्रेजेस, ये मुख्तलिफ के आप ये छोटे छोटे कार्ड्स बना लें, इवन और वाले बना के उसके ऊपर उसको एक्टिविटी के साथ उसको वो वाली असाइनमेंट्स दें, ताकि वो भी जल्दी करे, वो समझे भी ज्यादा, और आपको भी अच्छा लगे, राइट? फिर आगे क्या है जी? और क्या आप कोई आइडिया बोलें, कोई आप भी बोलें। जो आप करवा रहे हैं उसके बीच में बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करें। ओ आज हम ये करेंगे, आज हम फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर का देखेंगे कैसे होता है, आज हम उनका इंटरेस्ट, उनको मोटिवेट करें, थोड़ा सा जज्बाती हो गए जैसे आदमी होता है, ओहो आज हम ये कर लेंगे, आज हम ये वाली पोइम बड़ी मजे की है इसको देखेंगे, आज ये वाली नज़म करेंगे, आज हम कोई सी उसमें उनका इंटरेस्ट पैदा करें। जो आपने करिकुलम बनाया हुआ है, जो आपने टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं, उनको उसमें चाहे जैसे जज्बाती होता है ना, उस तरीके से उनको करना। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। अब कुछ चीजें जो कभी नहीं करनी चाहिए ऐसे बच्चे जो कि जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको सेल्फ वर्थ की नीड है, वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें तो बहुत एकदम से वो इंप्रूव कर जाएगा, ऐसा ऐसा चले, राइट? उसको ऐसा ऐसा लेके आए, और फिर उसकी जो उसको हेल्पलेसनेस जहां वो महसूस करता है कि यहाँ पे नहीं उससे हो रहा, मदद करें उसकी। अगर उससे लिखेंगे, मतलब आप उसकी हैंड राइटिंग कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं, हैंड राइटिंग सिखाना चाह रहे हैं, तो पकड़ने के लिए उसके आराम से उसको देखो, नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना। अगर इसी तरीके से आपको कोई नॉलेज थ्योरी का आप करना चाह रहे हैं, उसको कोई ऐसी तरीके से बताएं कि वो, क्योंकि हो सकता है वो फंस रहा हो, कोई न्यूमेरिकल्स में फंस रहा हो, फिजिक्स के, इसी तरीके से मैथमेटिक्स में किसी में हो रहा हो, तो उसको वहां पे जहां वो हेल्पलेस फील करता है, आप उसकी हेल्प करें। और क्या हो सकता है?
जी बच्चा जितना कैपेबल है उतना ही उसके ऊपर बोलेगा। राइट, ज्यादा होमवर्क ना दे, जितना वो कैपेबल है उसके मुताबिक उसको करें, बिल्कुल ठीक है। यस, और क्या कह रही हैं आप? ज्यादा होमवर्क ना दे, लेकिन उसको लर्निंग उसी वक्त जो चीज टीच करें उसी वक्त सुन लें ताकि वो जमा ज्यादा ना हो। राइट, ओके, दैट्स आल्सो वन वे। ओके, राइट, और एनीथिंग एल्स? जो वो कर सकता हो उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाए। एकदम से ऊपर डाल देंगे फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पहले ही फ्रस्ट्रेटेड है। फिर और क्या शाबाश? और necessary repeating, एक ही काम को बार बार करने के लिए ना दे, वो बोर भी हो जाएगा उस चीज फिर उससे बोर भी होने लग जाएगा। बोर भी नहीं। वो कहेगा ये क्या वही चीज है, मतलब आप अपनी तरफ से आप उसको चाह रहे हैं कि इसको बहुत अच्छी तरह याद हो जाए, लेकिन नहीं, उतना जितना कि याद हो गया तो फिर आगे नीचे चले। उसको ना चेंज कर करके बाजू का Change। एक्सरसाइजेस में बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं, मिसिंग लेटर्स, उसमें कोई एक लेटर लिखना होता है, स्पेलिंग मिस होती है। हाँ। उसके अलावा भी कोई बड़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है जिसमें मैचिंग होती है या कुछ एक जैसे वर्ड्स होते हैं जैसे शॉप, टॉप। सो उसको वैरायटी पैदा करके दें, जी थोड़ा सा डिफरेंट करके दें ताकि वो बोर ना महसूस करे। जी। राइट, हाँ। और क्या हो सकता है? यस, आपने कोई बोले? हाँ, और कौन जो नहीं बोला अभी तक? यस मैडम, आप बताइए और क्या है? क्या और नहीं आपको करना चाहिए ऐसे बच्चे के साथ? यस, गिव योर थॉट्स। अगर वो डेली बेसिस वाला काम नहीं कर रहा तो उसको मजीद बर्डन ना डाल दें कि ये भी जो है वो करके लाओ, तुमने ये नहीं किया, एक बार नहीं किया तो उसको 10 दफा लिख के लाओ, वो उससे भी सो उसको, हाँ, उसको साथ आपने लेके चलना है। उसको मजीद बर्डन डालने के बजाय उसको कोशिश करें जितना जितना वो उठा सकता है उतना आप उसमें करते चले जाएं। जैसे मैडम ने पहले कहा कि उसको ओवर वर्क ना करें, उसको उतना काम दें जितना वो मुनासिब तरीके से कर सकते हैं। और फिर और क्या करना, और क्या बोले? हाँ जी, शाबाश, बच्चे को डिग्रेड ना करे। वेरी राइट। जैसे मदीन साहब ने कहा उसको डिग्रेड ना करें, रिजेक्शन ना उसको महसूस हो, उसको हमने इनकरेज करके आगे लेके आना है। उसको ऐसे दबा के उसको डिग्रेड मत करें, रिजेक्टेड मत ना करें, उसको करवाएं। राइट, और कोई पॉइंट आपके ध्यान में? अगर से कोई किसी लेक्चर का 30 मिनट्स का पीरियड है तो यही नहीं कि 30 मिनट्स उस बच्चे ने फोकस करना है, उसमें से कुछ टाइम बचा कोई वैरायटी पैदा करनी है, खुशी करें, उसको साथ लेके चलना है। अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं है तो आप फिर अकेले ही हैं। टीचर आपने अपने आप को पढ़ाया, उसको नहीं पढ़ाया। राइट, सो उसको सेल्फ वर्दी होना, उसको फीलिंग दिलाएं उसको। राइट, दैट वाज ऑल फॉर द थर्ड सेशन। कोई आपके क्वेश्चन है तो बताइए। सर मेरी ये कोशिश है, तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें वर्ड टू वर्ड याद करना है, तुम उसमें थोड़ा तख्लीकी भी लाओ। बिल्कुल, बुक से देखो, गाइड से देखो, सीनियर क्लास पे देखो, इधर उधर देखो, हाँ। जनरल नॉलेज देखो, बल्कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा टीवी पे वो वर्ड आए उसको देखो, उसको याद करो, स्पेल ओरिजिनल फॉर्म कैसी है उसकी, कैसे बोला जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, और भी और हाँ जी, कोई क्वेश्चन भी किसी किस्म का? क्वेश्चन ना होने पे दो ही होती हैं, या कुछ भी नहीं आया, किसी को पता चला, सारा कुछ आ या गया। कुछ सब कुछ आ गया। हैं? सर अभी तो समझ आ गया सारा, बाद में देखेंगे। तो इसको ये उस पे इसको दोबारा सुने, बिल्कुल। दोबारा सुनेंगे तो कोई क्वेश्चन आया तो फिर इंशाल्लाह पूछेंगे। श्योर, थैंक यू वेरी मच। ओके, स्टे ब्लेस्ड।